Hello students, you are most welcome in the class of mathematics by N.K. Dixit. Now, this is the ninth lecture of indefinite integrals, and for indefinite integrals, this is the last lecture. After that, we will start the definite integrals. Now, only the integrals have some more types. There are three formulas. This topic was left. It is the exercise 7.7. So let us start. Yes. Here the first formula is the integration of under root x square minus a square. So it is equals to x upon 2 under root x square minus a square upon 2 log of mod of x plus under root x square minus a square plus constant of integration. In the same way, under root x square plus a square dx is equals to x upon 2 under root x square plus a square upon 2 log of x plus under root x square plus a square, and the last one is integration of square root a square minus x square dx, that is equal to x upon 2 under root a square minus x square plus a square upon 2 sine inverse x upon a plus constant of integration. So first of all, let us see the proof. So I am taking the first formula. The proof of the first formula. The first formula is the integration of under root x square minus a square dx. Now it can be solved through two different ways. The first one is integration by parts and other one is by substitution method. So first of all, I am taking with the help of integration by parts. So here within the square root one function is given x square minus a square. So take 1 in the multiply of under root x square minus a square as another function, so that there is the product of two functions. तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो फंक्शन है उसके साथ में 1 ले लेंगे एक दूसरा फंक्शन बनाने के लिए, जिससे कि हम टू फंक्शंस जब होंगे तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन. तो फर्स्ट फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. So this is the first function and 1 is second function. So now the first function is square root of x square minus a square in integration of 1 with respect to x minus integration of a derivative of first function, that is x square minus a square raised to the power half into integration of 1 with respect to x, then integration of this whole quantity. So integration of 1 is x, so we get x square minus a square into x minus the derivative of this x square minus a square raised to the power half, it will be 1 by 2 x square minus a square raised to the power minus half, and into 2x. Integration of 1 is x with respect to x, so this 2 is cancelled out, and we get x into under root x square minus a square minus integration of x square divided by x square minus a square within square root.
dx। x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो सेकेंड टर्म में इंटीग्रेशन करना है, इसमें हम अगर न्यूमरेटर को ब्रेक कर लें, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस किया है और ए स्क्वायर को प्लस किया, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें जो न्यूमरेटर है इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, and the next one is a square is common, so 1 upon under root x square minus a square dx। x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो न्यूमरेटर में बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले एक्सरसाइज में, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, उसका यूज कर लेंगे। इट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो सेकेंड टर्म है उसमें अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन बचा हुआ है हमने वहीं से स्टार्ट किया था। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना था, क्वेश्चन जो था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही टर्म यहाँ पे रिपीट हो गया। तो अगर हमने इस इंटीग्रेशन को आई कंसीडर किया था तो हम यहाँ पे फिर से इसको लिख सकते हैं, इट इज माइनस आई माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो निगेटिव आई आया है इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो आई प्लस आई दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log of mod of x plus under root x square minus a square. So this is the value of 2 times of the given integration. So dividing by 2 we get I equals to x by 2 under root x square minus a square upon 2 log of mod of x plus under root x square minus a square plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में 2 से इसलिए नहीं डिवाइड किया कि अगर हम इसमें 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो हमें एक कांस्टेंट ही मिलेगा, तो उसको हम c लिख सकते हैं, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट से, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। So this is the formula for the first under root x square minus a square। इसी तरह से हम बाकी के जो 2 फार्मूले हैं उनको भी प्रूव कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जो हमने अभी ये फार्मूला लिया है इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx by substitution। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, अगर हम यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट कर दें, x इक्वल्स टू a sec थीटा। अब a sec थीटा क्यों सिलेक्ट किया गया? अगर ट्रिग्नोमेट्री में हमें कोई रेशियो सिलेक्ट करना है तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे हम x के प्लेस पे a sec थीटा लेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो a स्क्वायर कॉमन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो 2 टर्म्स दे रखे हैं स्क्वायर रूट के अंदर, उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन सुटेबल होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट किया है x इक्वल टू a sec थीटा। अब x जब a sec थीटा के इक्वल होगा तो इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू a sec थीटा इंटू tan थीटा एंड d थीटा। तो इस तरह से हम dx को रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ से देखें कि जब हमने x इक्वल टू a sec थीटा लिया, then the value of sec theta is x upon a and the value of tan theta will be, tan theta होता है अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, so it is स्क्वायर रूट x upon 2 स्क्वायर, सॉरी x upon a स्क्वायर, यहाँ पे a होगा yes this is a, so x square upon a square minus 1, so we get x square minus a square upon a square. This is the value of tan theta. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया है वो स्क्वायर टर्म दिया हुआ है और अंडर रूट के साथ है, इसलिए उसमें स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो ये जो वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है सेक थीटा और टेन थीटा, ये लास्ट में हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए हमने निकाल करके रख लिया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो the value of x is a sec theta, we have a square sec square theta in place of x square minus a square, और dx के प्लेस पे आ जाएगा 8 sec theta into tan theta into d theta। अब देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन मिलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर बचेगा a, और एक और a दिया हुआ है sec theta tan theta के साथ, तो a into a that is a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन में रूट के अंदर जो क्वांटिटी बच रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट में है इसलिए टेन थीटा बचेगा, तो हमारे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। एक टेन थीटा यहाँ से मिला और एक टेन थीटा जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है वहां से, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको ब्रेक कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा, उसके बाद टर्म्स को सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा। नाउ वी हैव टू टर्म्स। The first term is integration of sec cube theta d theta minus a square integration of sec theta d theta। तो सेकेंड टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा जो हमें फार्मूला पता है log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा। To find the integration of sec cube theta, you can write it sec theta into sec square theta minus a square, और इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं log ऑफ sec theta प्लस tan theta प्लस c। अब हमें फाइनली जो कंसंट्रेट करना है वो फर्स्ट टर्म पे करना है जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और सेकंड टर्म एज इट इज लिखते रहेंगे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, डबल फंक्शन। तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और सेक थीटा जो दूसरा फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन d over d theta sec theta इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म था उसको एज इट इज लिख लेंगे a स्क्वायर log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर सेक थीटा। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज टेन थीटा। तो फर्स्ट टर्म ये सॉल्व हो गया। द नेक्स्ट, द इंटीग्रेशन ऑफ the sec theta. What is the integration of sec theta? That is, sorry, differentiation of sec theta is sec theta into tan theta, and integration of sec square theta is tan theta d theta minus a square log of mod of sec theta plus tan theta. अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये फर्स्ट टर्म जो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्म होगा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब आप देखिए, हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से देखें, जो आई हमने टर्म लिया था इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा डी थीटा। सेम क्वांटिटी यहाँ पे रिपीट हो रही है, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, यहाँ से हम लोग एक बार देखते हैं। अभी हम टोटली कंसंट्रेट कर रहे हैं इस टर्म पे, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, तो जो क्वेश्चन हमारा था ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म, यही इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था। तो इसको हम लोगों ने आई कंसीडर किया था। तो इट मीन्स जब हमें सेम टर्म मिल रहा है तो हम उसके प्लेस पे फिर से आई लिख लेंगे। तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस आई माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब ये जो इंटीग्रेशन था उसको आई से रिप्रेजेंट किया था। अब एक माइनस आई यहाँ पे राइट साइड में है, उसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तब हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई। Then we get 2 times of I is equals to a square sec theta into tan theta minus a square log of sec theta plus tan theta plus c। अब जो 2 यहाँ पे दिया हुआ है i के साथ, हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी, मीन्स i की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 2 sec theta into tan theta माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी अपॉन 2। तो सी अपॉन 2 भी एक कांस्टेंट होगा। लेटस हम पहले अगर इसको C1 मान लेते हैं, और यहाँ पे जो नया वेरिएबल मिले, जो नया कांस्टेंट मिलेगा दैट इज C1 अपॉन 2, तो C1 अपॉन 2 को C2 मान लेते हैं। तो ये नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे मिल गया। अब जो हमारा काम बचा है इस क्वेश्चन में, वो सेक थीटा और टेन थीटा को x के टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया था दैट वाज टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसीलिए हमने अब स्टार्टिंग में ही सेक थीटा और टेन थीटा को फाइंड कर लिया था। सेक थीटा को हम x अपॉन ए लिखेंगे, दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 2 x upon a, this is the value of sec theta, and the value of tan theta is under root x square minus a square upon a minus a square upon 2 log of x upon a plus under root x square minus a square upon a plus c2। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर
अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ए है और यहाँ पे एक ए है, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो ए बचेगा उस लॉग को अगर हम सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं अपॉन में ए आएगा प्लस C2। तो अगर हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ mod of x plus under root x square minus a square and minus a square upon 2 log of a, that is positive sign। यहाँ पे हम लोगों ने log की ये प्रॉपर्टी यूज कर ली है, log a अपॉन b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b। तो जो log a का टर्म निगेटिव आएगा उसको हमने सेपरेट कर लिया और उसके साथ a स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई हो गया। बट फाइनली जो हमें ये टर्म मिला हुआ है ये वाला, तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं c, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इसको हटा करके इन दोनों टर्म्स को जो फाइनली आंसर लिखेंगे दैट विल बी x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस फार्मूले को ड्राइव किया। तो यहाँ पे जो तीनों फार्मूले आपको दिए हुए हैं इनमें आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोनों की हेल्प से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो अब आप जो बचे हुए दो फार्मूले हैं उनको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोनों की हेल्प से करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं बता दूं कि जो सेकेंड फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, उसमें आपको x की वैल्यू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करनी होगी, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बिकॉज देन यू विल गेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विद इन स्क्वायर रूट एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लास्ट वाला प्रूफ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें हमें x को कंसीडर करना पड़ेगा आइदर x इक्वल टू a sin थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा। तो उसकी हेल्प से हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमें कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म मिलती है तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ए कॉसेक थीटा का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और जब हमें कोई इस तरह का टर्म मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब हम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ए टेन थीटा। और जब हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से रिलेटेड टर्म मिलता है तब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ए साइन थीटा। तो यहाँ पे ए सेक थीटा जहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके प्लेस पे ए कोसेक थीटा का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड में जो हम लोगों ने ए टेन थीटा का यूज बताया है उसमें ए कॉट थीटा का भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट वन जो ए सेक थीटा का यूज करना है उसके प्लेस पे ए कॉस थीटा का भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही यूजफुल है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.7 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और ये जो फार्मूले अभी पढ़े हैं इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 7.7 आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। So the second question was given I equals to इंटीग्रेशन करना है हमें, फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 2x, और अगर 2x को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, लेट 2x इज इक्वल्स टू t,
तो जब 2x को t लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ dx दैट इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। अब ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन था वो बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dx के प्लेस पे 1/2 dt। तो 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अभी जो 3 फार्मूले पढ़े उनमें से एक फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज करने पे हमने जो फार्मूला अभी पढ़ा था उसको मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे a के प्लेस पे हमने जो दिया है कांस्टेंट वो है 1 और x के प्लेस पे हो गया t, तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लिखते समय ध्यान रखेंगे। तो अप्लाई द फार्मूला, इट इज x अपॉन 2 दैट इज t अपॉन 2 अंडर रूट a square minus x square means 1 minus t square plus a square upon 2 that is 1/2, square of 1 is 1 and sin inverse x upon a that is t upon 1 that is t plus constant of integration c, this sin inverse sorry, so we get 1/2। अब यहाँ पे हम t को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने t कंसीडर किया था 2x को, यहाँ से देखिए तो 2x को t कंसीडर किया था, तो जहाँ पे हमने t लिखा वहाँ पे हम 2x ले लेंगे। तो t के प्लेस पे 2x लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड इट इज साइन इनवर्स 2x प्लस c। यहाँ 2 कैंसिल कर दिया तो हमें जो आंसर मिला दैट इज 1/2 x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 जो 1/2 ब्रैकेट के आउटसाइड है उससे मल्टीप्लाई हो गया और ये साइन इनवर्स 2x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप यहाँ पे कुछ टर्म्स को जंप भी कर सकते हैं, जैसे आपको बताया था कि जब भी कोई फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है उसमें x के प्लेस पे कोई ऐसा वो वेरिएबल दे रखा है जिसमें x का कोफिशिएंट दे रखा है, तो फार्मूला में इट इज अप्लाई कर देते हैं और जो कोफिशिएंट x का होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन हो जाएगी, उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है कि अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो हम 2x को साइन थीटा कंसीडर करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी दे रखी है हम उसको अगर परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना चाहें तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो अगर इसमें हम 4 यहाँ पे ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म 6 था तो उसका 2 सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ x प्लस 2, इट इज x प्लस 2 होल स्क्वायर, और इस 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2, क्योंकि हमें फॉर्म बनानी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म होगी तो हम वहाँ पे फार्मूला यूज कर पाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फार्मूला था। एक बार फार्मूले को हम फिर से, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे जितनी बार आप उसको देखेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो हम एक बार यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, we know under root x square plus a square integration with respect to x it is equals to 1/2x under root x square plus a square upon 2 log of
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा सा देखने में बड़ा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जहाँ पे x है फार्मूले में, उस x के प्लेस पे क्वेश्चन में x प्लस 2 दिया हुआ है, और जो कांस्टेंट a है उसके प्लेस पे √2 है। तो इस तरह से हम ये फार्मूला यूज करेंगे इन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा जो आंसर होगा वो इस तरह से आ जाएगा 1/2, फिर x के प्लेस पे हो गया x प्लस 2, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है, जो क्वेश्चन था वही सेम क्वांटिटी मिलती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि रूट के अंदर क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। या एक स्टेप में हम पहले लिख करके दिखा देते हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप में वो वैल्यू लिख देंगे। प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर इज अंडर रूट 2 स्क्वायर अपॉन 2, लॉग ऑफ x के प्लेस पे आ जाएगा x प्लस 2 एंड विद इन स्क्वायर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/2 x प्लस 2, अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में वही मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 2 से 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग के साथ बचेगा हमारे पास x प्लस 2 एंड प्लस, यहाँ पे प्लस साइन मिस हो गया था, अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी मिलेगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 जो क्वेश्चन में गिवन था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 3 फार्मूले जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, और जब हम लोग एक चैप्टर है आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें भी इन तीनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इन फार्मूले को अच्छी तरह से याद रखेंगे और इनकी हेल्प से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज से ले रहा हूँ, दैट इज द 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। पिछले क्वेश्चन बहुत आसानी से परफेक्ट स्क्वायर मिल गया था, यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है, बट एज पर रूल्स जब हम लोग चलेंगे तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम अलग साइड में देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर, उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव दिया हुआ है, तो अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस साइन कॉमन लेते ही सारे टर्म्स जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो निगेटिव एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, और 1 पॉजिटिव था तो वो निगेटिव 1 हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ब्रैकेट के अंदर ही हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3x दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर साथ में होना चाहिए, तब ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमने यहाँ पे जितना प्लस किया है उतना माइनस कर देते हैं, 3/2 होल स्क्वायर माइनस कर देते हैं, सॉरी माइनस एंड माइनस 1। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये बन गया आपका x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसमें आपके पास है 9/4 माइनस 1। तो 9/4 माइनस 1 दोनों कांस्टेंट हैं, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा -13/4, प्लस किया था। तो प्लस, अब क्योंकि बाहर निगेटिव साइन था, तो अब देखिए जो कांस्टेंट हमारा निगेटिव साइन के साथ आ रहा है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव 13/, और ये जो x वाला टर्म है वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर निगेटिव साइन है। तो इस तरह से हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि हमें फॉर्म कौन सी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट दिया उसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 13/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हम
डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, इसके अंदर आ जाएगा अंडर रूट 13/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं x माइनस 3/2 को t मान सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो उस फार्मूले को जब हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो देखिए फार्मूला क्या था, उसको हम एक बार फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है that is equal to 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसका यूज कर लेते हैं। तो a के प्लेस पे हमारे पास अंडर रूट 13/2 है और x के प्लेस पे x माइनस 3/2 है, तो इसका ध्यान रखते हुए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आगे देखते हैं इसको, ऊपर थोड़ा स्पेस कम है। स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 13/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें पूरा स्पेस मिल रहा है। तो इट इज 1/2x। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x माइनस 3/2। फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट 13 था, जिसको हम लोग ये 13 लेकर के चल रहे हैं, अंडर रूट 13 हो जाएगा ऊपर। हाँ ठीक है, अंडर रूट 13 ही लिखा हुआ है। सो इट इज अंडर रूट 13/2 स्क्वायर, दैट इज 13/4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और एक्स स्क्वायर x माइनस 3/2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1/2, और एक्स ए स्क्वायर ए का स्क्वायर जब करेंगे तो 13/4 होगा, इट इज 13/4। Sorry, due to some technical problem, it is 1/2 13/4, इस तरह से ही आ जाएगा। yes. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज x माइनस 3/2, और a की वैल्यू है अंडर रूट 13/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2x माइनस 3/2। अब देखिए अंडर रूट के अंदर लिखा है 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई थी? इस वैल्यू को हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको चेंज करके निकाला था। तो सेम हम वही क्वांटिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में था अंडर रूट में 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम उसी चीज को रिपीट कर सकते हैं, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट इज अंडर रूट 1 माइनस 3x 1 माइनस 3x 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्लस। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 13/8 साइन इनवर्स। अब यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, और जो एलसीएम में 2 आएगा वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में रूट 13 के अपॉन में दे रखा है। तो अपॉन में अंडर रूट 13 ये टर्म आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप अब आप ये जो एक्सरसाइज अभी मैंने बताई 7.7, इसके बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि मैंने हर तरह का क्वेश्चन भी ले लिया है, और इसको फार्मूला जो यूज किया गया वो कहाँ से आया, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो सिंपली अगर उसी मेथड को अप्लाई कर देंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम
इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कंप्लीट हो रहा है, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का स्टार्टिंग करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। ओके, थैंक यू।